Are you worried about your boards and pre-boards? I know how it feels. आप लोगों को बहुत ज़्यादा stressed feel हो रहा होगा, टेंशन में आ गए होंगे आप लोग, बिकॉज जैसे जैसे प्री बोर्ड्स नज़दीक आते हैं वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है. आई नो हाउ इट फील्स बिकॉज लास्ट ईयर आई वॉज इन द सेम कंडीशन एज यू गाइज. काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बैंड बजने वाली है हमारी. I have a very good experience of 10th standard as I scored 94% in my board exam. Thank you. So in this video, I'll be telling you guys what mistakes you should avoid in 10th standard and what your strategy should be to get 90 plus in your boards as well as in your pre-boards. First of all, take a deep breath with me and breathe out. Do not panic, do not stress out. Just sit quietly, listen to this video carefully. Last year मैंने भी board exam दी है, so I know how it feels to be overburdened with lots of work. So without any further ado, let's get started. I made proper notes for you guys because मुझे कोई chance नहीं लेना इस बार. I need you guys to score 90 plus in your board exam. So let's get started. First of all, many people have commented in my recent videos कि दीदी our syllabus is incomplete, what should we do? First thing you should do is do not panic. Stress less, study more. That should be your motive for board exam. स्ट्रेस लेने के बाद भी आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा 2% मिलने नहीं वाले. पढ़ाई करने के बाद शायद वो मिल सकते हैं. सो मे बी यू शुड स्टडी. मे बी क्या, यू हैव टू स्टडी मोर एंड टेक स्ट्रेस लेस बिकॉज बोर्ड एग्जाम ही है. It's not going to be super hard. It's not even hard from my perspective, from my experience. Trust me. If you study well, it's going to be just a piece of cake for you guys. अभी आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, right? So I just want to tell you guys कि प्री बोर्ड्स के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट मत करो. Like if you are just completing your syllabus for pre board, don't do it. Your main target is boards, right? Concepts clear करते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट करते चलो. And number one thing guys, which many toppers do not tell you, you don't need to study everything. Yeah, you heard that right. You don't need to copy or study or memorize each and every line from your textbook or notebook or NCERT. That's absolutely what toppers follow to get 90 plus in their board exam. I just want to tell you guys, focus more on important chapters. I'm not telling you guys to neglect or ignore the less important chapters, but फोकस मोर ऑन द वंस दैट आर इंपॉर्टेंट. लाइक जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स के ज़्यादा चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने के, जिस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम, फोकस ऑन दोज. अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, दैट डजंट मीन कि यू हैव टू स्टार्ट पैनिकिंग. लाइक जितना भी आपका 50%, 60%, 70%, 80% कंप्लीटेड है, फोकस ऑन दैट फर्स्ट. लाइक जस्ट डू रिविजन ऑफ दैट. साइमल्टेनियसली जो आपका इनकम्प्लीट है वो भी कंप्लीट करते चलो, बट रिवाइज भी करते चलो जितना आपका कंप्लीट है, ताकि आप वो चैप्टर्स भूल ना जाओ. Like जितना पार्ट ऑफ द सिलेबस आपका कंप्लीटेड है, डू नॉट निग्लेक्ट दैट. डू रिविजन कॉन्स्टेंटली. दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू से टू यू गाइस बिकॉज रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड बात रही आपकी सिलेबस कंप्लीशन की, तो डू नॉट पैनिक अबाउट इट. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन योर हैंड नाउ. यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका सिलेबस 50-60% हुआ है, डू नॉट पैनिक. यू हैव इनफ टाइम. यू कैन सिट डाउन ऑन योर वीकेंड्स फॉर 3-4 hours straight and complete your syllabus. Okay? It is possible guys. You have to do it if you want to score 90 plus in your board exam. Without sacrifice, you cannot get success. Trust me, put this in your mind. You have to work hard if you want results. Just imagine the result day when your parents will see 94, 95, 90, 80%. And I just want to tell you guys this much. अभी तक आपके पास बहुत समय है. Do not give up right now. Because ये give up करने का time नहीं है. Maximum students start studying now. दिस इज़ अ हार्श रियलिटी बट आई एम जस्ट सेइंग इट. मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था जब प्री बोर्ड्स मेरे आए थे. लाइक आई थिंक मेरा 70-80% ही कंप्लीट था. सेकेंड टिप आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल इज डोंट वेस्ट टाइम राइट नाउ. लाइक अगर आपको अभी भी लग रहा है कि काफ़ी समय है समय. लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि अभी आपके नेक्स्ट मंथ बोर्ड है, आपके पास टाइम है तो उसका इस्तेमाल अच्छे से करो, प्रोडक्टिवली करो. लाइक यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. लाइक आपके पास जितना टाइम है उतना आप ज़्यादा कर सकते हो. लाइक बाकी के बच्चे आर वर्किंग देयर dash off, so you should too. Because I am not scaring you guys, I am just telling you all the reality. Maximum students अभी सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, सो यू शुड ऑल्सो. दिस इज ओनली माई टिप. नॉट टेक बोर्ड एग्जाम टू लाइटली और डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट टू मच. जस्ट बैलेंस दीज टू थिंग्स एंड यू विल बी ओके. नेक्स्ट थिंग इज अभी आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, आई नो दैट. एंड प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क लाना इज नॉट आवर टारगेट. प्री बोर्ड के लिए मत पढ़ो गाइज, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ो. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इवन मेरे जो प्री बोर्ड्स थे तब आई मेड दिस मिस्टेक कि आई स्टडीड ओनली फॉर प्री बोर्ड, नॉट कीपिंग इन द माइंड कि नेक्स्ट एग्जाम इज माई मेन एग्जाम. लाइक आपको प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ना तो है ऑफकोर्स, लेकिन
आपको बस प्री बोर्ड के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, लाइक आज हमने पढ़ लिया प्री बोर्ड के लिए, कल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा पूरा ब्लैंक है। नो, अब थोड़ा ही पढ़ो, लाइक बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक टाइम है, राइट? तो प्री बोर्ड के लिए थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, लाइक कंसेप्ट समझ के पढ़ो, उसकी बार बार रिविजन करो। प्री बोर्ड इज नॉट अ मेन टारगेट। प्री बोर्ड में अगर 1-2% कम भी आ जाएंगे तो इट विल नॉट हार्म यू, बट बोर्ड एग्जाम में अगर 1-2% कम आ जाएंगे तो इट विल अफेक्ट यू, राइट? सो आर मेन मोटिव इज बोर्ड एग्जाम, राइट? तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ो गाइस। नेक्स्ट थिंग इज बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने के लिए हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? दिस इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। कोई स्टूडेंट 3 घंटे पढ़ के भी 95 ला सकता है, कोई स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ के भी 95 ला सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको वीक डेज पे पढ़ना है तो यू शुड एटलीस्ट स्टडी फॉर 4 hours। नाउ हाउ यूल डू इट? वेक अप अर्ली, स्लीप लेट, डू इट हाउएवर यू वांट टू डू इट, बट डू इट। जैसे करना है करो, लाइक जितना जागना है, कम सो रहे हो सो जाओ, कॉफ़ी पी के करना है, लेट नाइट करना है, पुलिंग ऑल नाइटर करना है, करो बट पढ़ो। ओके अभी बस थोड़ा ही टाइम पढ़ना है, उसके बाद वेकेशंस ही है गाइस। तो उसके बारे में सोचो कि आपको वेकेशंस ही है, अभी बस थोड़े टाइम के लिए पढ़ना है, तो अच्छा मन लगा के पढ़ो। ओके वीक डेज पे आई से दैट यू शुड स्टडी मिनिमम फॉर 4 hours, एंड वीकेंड्स पे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लाइक जितना भी आप घिस सकते हो घिसो। नाउ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। फिर भी गाइज अगर आपको परफेक्ट टाइम चाहिए वीकेंड्स के लिए तो यू शुड स्टडी फॉर 7 to 8 hours मैक्सिमम ऑन वीकेंड। आई एम सेइंग मैक्सिमम, बहुत ऐसे रिएक्शन में 7-8 घंटे इतना कौन पढ़ता है, वो भी बोर्ड्स के लिए पढ़ता है गाइस। जिसको 95+ चाहिए, 90+ चाहिए, वो पढ़ते हैं। So that is the difference between average student and topper student. I am not criticizing anyone. I am just telling reality. क्योंकि कुछ बच्चों को really sincerely 90+, 95+ चाहिए. So for them I am saying. लास्ट मिनट के लिए कुछ भी नहीं रखना हमें। बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले हमें कुछ भी नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने। वी नीड टू जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो अभी पूरे नए टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ो, पुराने टॉपिक्स की भी रिवीजन अच्छे से करो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें पोटेंशियल है, स्टडी एज मच एज यू कैन। ओके 7-8 hours स्टडी। मेरा जो बोर्ड प्री बोर्ड से एक दिन पहले का वीडियो था मोस्ट पॉपुलर वंस, उसमें मैंने बहुत पूरी रात जाग के पढ़ाई की थी। इफ़ यू वॉन्ट टू यू वुड स्टडी, ओके you should study for your parents, for yourself. Focus on high weightage topics. चैप्टर का भी पूरा नहीं पढ़ना हमें, पूरा चैप्टर रटना नहीं है हमें, समझ के लेना है पूरा चैप्टर। और जो टॉपिक्स चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स हमें कभी कभी इशारा करते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दिस विल कम, यू हैव टू मार्क इट राइट देयर एंड डू नॉट इग्नोर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑल टू फोकस मोर ऑन टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक्स, क्योंकि गाइज मैक्सिमम सवाल उसी में से आते हैं। आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी, क्योंकि गाइज बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं इवन इन प्री बोर्ड्स आर वेरी लिमिटेड। हर एक टॉपिक में से कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे। लेट मी टेल यू ऑल स्टोरी अबाउट माई 10th जर्नी। 10th में आकर आई वॉज लाइक ये तो बहुत ईजी है, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो लास्ट ईयर है स्कूल का, आई शुड एन्जॉय। एंड मैंने वही किया, लाइक इनिशियल मंथ्स में आई कंप्लीटली इग्नोर्ड माई 10th एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग विद माई फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल में फंक्शंस हुआ करते थे, तो उनमें मेरी स्टडी निगलेक्ट होती गई। एंड जैसे जैसे प्री बोर्ड्स आए मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, सो आई स्टार्टेड पैनिकिंग। दिस इज वॉट यू शुड नॉट डू गाइस, बट आई समहाउ मैनेज्ड टू कंप्लीट 80% ऑफ माई सिलेबस बिफोर प्री बोर्ड्स। अगर आपका 80% नहीं है, 50-60% है, फिर भी नो प्रॉब्लम गाइज। मतलब बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए पढ़ो। प्री बोर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग इट अगेन, इट इज इंपॉर्टेंट बट बोर्ड्स से ज़्यादा नहीं। इफ आई कैन स्कोर 94% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, तो यू कैन ऑल्सो। आई जस्ट प्रिपेयर्ड, लाइक आई वॉज सीरियस फॉर लास्ट 2-3 months only for boards. I was not serious from starting of the 10th standard. If I can do it, you can also. And guys, lastly, do not take stress at all. Okay? Pre-boards का तो मत ही लो and boards का भी मत लो. It's not that hard. You can do it. I trust you and you should trust yourself too. You can do it. If you're watching this video, that means you are damn serious about your board. And I know that you will give 100% in your board exams. All the best.